गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट में लेसन 3 डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। हियर you have some of the pictures and according your observation you have to answer of this question। अब पहले पिक्चर में देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है we can see the ground। ये जो ग्राउंड पे ये देख रहे हो ना सीड, वो लेटा हुआ है, तो ये ग्राउंड है। The sun shining in the sky and the mountains, तो ये जो दिखाए है ये माउंटेन्स है। अब दूसरा क्या दिखता है? A seed is seen resting below the ground. So we can say that in the first picture we can see the ground, the sun shining in the sky and the mountains, and moreover a seed is seen resting below the ground. In the second picture we can see the ground, the moon and the mountains। तो ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये माउंटेन्स है। The seed below the ground is getting ready to grow। तो ये जो सीड यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, अभी ये जो सीड है खड़ा हो गया। किस लिए खड़ा हुआ? रेडी टू ग्रो। थर्ड पिक्चर है, तो थर्ड पिक्चर में क्या दिखाया है? रेनी सीजन दिखाई है। आप देख रहे हो ना, rain falling। In the fourth picture, the seed has become a large tree। ये जो सीड था, ये तो अब क्या हुआ? ये जो सीड था वो लार्ज ट्री में कन्वर्ट हो गया। The sun and mountains are seen behind the tree। Grass is growing around the tree। तो ये जो नीचे ग्रास दिखाई गई है वो ट्री के चारों ओर दिखाई देती है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। What do you see in the first picture? In the first picture we can see the ground, the sun is shining in the sky and the mountains, and moreover a seed is seen resting below the ground। What is seen in the second picture? ये second picture है। second picture में क्या दिखाई देता है? In the second picture we can see the ground, the moon in the sky and the mountains। The seed below the ground is getting ready to grow। Which season is shown in the third picture? ये थर्ड पिक्चर में कौन सी सीजन दिखाई गई है? In the third picture rainy season is shown। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे रेन फॉलिंग दिखाई है, तो रेनी सीजन है। What do you see in the fourth picture? In the fourth picture the seed has become a large tree। The sun and mountains are seen behind the tree। Grass is growing around the tree। तो ये जो ग्रास दिखाया गया है वो ट्री के चारों ओर ग्रो अप हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। Observe the picture and answer the question। What do you see in the first picture? In the first picture we can see the ground, the sun shining in the sky and the mountains। A seed is seen resting below the ground। Second question है, what is seen in the second picture? In the second picture we can see the ground, the moon in the sky and the mountains। The seed below the ground is getting ready to grow। Which season is shown in the third picture? In the third picture rainy season is shown। What do you see in the fourth picture? In the fourth picture the seed has become a large tree। The sun and mountains are seen behind the tree। Grass is growing around the tree। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स विथ अ स्टोन। तो हमें एक स्टोन से डिफरेंट काइंड के जो सीड्स होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, उनको क्या करना है? ब्रेक करना है। पुट असाइड द सीड विच हैज़ ब्रोकन इन 2 इक्वल हाफ्स। तो जो भी सीड्स है उसको तोड़ने के बाद सिमिलरली इक्वल पार्ट्स हो गए हैं दो, उसको बाजू में रख देना है। Separate the seeds which have got into powder form while breaking। और ऐसे जो सीड्स है उनको भी अलग रखना है, जिसको हमने स्टोन से तोड़ने की कोशिश की तो वो पाउडर फॉर्म में टूट गए। Finally rub all the seeds that have broken in equal halves or got into powder on a piece of paper। अब क्या करना है? एक पेपर लेना है और जो भी सीड्स
दो पार्ट में इक्वल हुए हैं या पाउडर फॉर्म में हुए हैं, वो सारे जो सीड्स है उनको पेपर पे रब करना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थिंक करना है और राइट करना है। फर्स्ट देखते हैं सीड्स विथ 2 इक्वल हाफ्स। तो ऐसे कुछ सीड्स जिसको हमने स्टोन से तोड़ने की कोशिश की और उसके 2 सिमिलरली पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए ना, हाफ हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रीन ग्रैम है, पिजन पीस है, बेंगल ग्रैम है, पीस है। तो इसको तोड़ने के बाद उसके 2 इक्वल हाफ्स हो गए। Seeds having broken into 2 equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses। तो ऐसे सीड्स जिसको तोड़ने के बाद उसके 2 इक्वल हाफ्स हो गए और उन्होंने क्या किया, पेपर पर जब हमने घिसा तो कोई भी ऑयली मार्क्स नहीं रहा, तो उसको कहते हैं हम पल्सिस। क्या कहेंगे? पल्सिस। Seeds which have been broken into pieces or turned into powder form। तो ऐसे कुछ सीड्स जिसको तोड़ने के बाद वो पाउडर फॉर्म उसका हो गया। व्हीट है, मेज है, जोवार है, मिलेट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। द सीड्स which turn into broken pieces और पाउडर आर कॉल्ड सीरियल्स। तो उनको कहेंगे सीरियल्स। ऐसे जो सीड्स वो क्या हो गए, टुकड़े हो गए जिसके, और या फिर वो उसका पाउडर फॉर्म हो गया, तो उनको कहेंगे हम सीरियल्स। पीसीस और पाउडर ऑफ सीड्स, उसके टुकड़े या फिर सीड्स का पाउडर। लीविंग ऑयली स्पॉट ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग। तो जब यहाँ पे हमने उनको पेपर पे रब किया था तो उसमें थोड़े से ऑयली पार्ट रह गए। ऐसे सीड्स की लिस्ट है, उसमें है सीसम, कैस्टर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। द सीड्स releasing oil while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seeds। तो ऐसे कुछ सीड्स जिसको तोड़ने के बाद जिसके पीस हो गए या फिर उसकी पेस्ट बनाते या पाउडर बनाते तो उसको ऑयल फॉर्म होता है। जो ऑयल फॉर्म होता है वो हमें पेपर पे दिखता है। तो ऐसे जो सीड्स है उनको ऑयल सीड्स कहा जाता है। Let's move on page number 23. Make a list of seeds. Write the names of seeds which you have seen or you know. Seeds that you have seen: wheat, millet, paddy, green gram, field bean, bengal gram। ये जो सीड्स है जिसको आपने देखा है। Seeds that you haven't seen, तो आपने नहीं देखे हैं ऐसे सीड्स: maize, bunty, moth bean, castor, mustard, kidney beans। So these are the list. Next, classify the seeds in the table given below. Cereals, तो cereals किसे कहेंगे, आपने देखा है। The seeds which turn into broken pieces or powder are called or known as cereals. Pulses किसे कहेंगे? Seeds having broken into 2 equal halves but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. अब ऑयल सीड्स किसे कहेंगे? द सीड्स रिलीजिंग ऑयल while breaking into pieces or making paste or powder are known as oil seeds। तो यहाँ पे मैंने सीरियल्स की लिस्ट बनाई है, ये पल्सेस की और ऑयल सीड्स की। अब देखते हैं मिलेट, मेज, व्हीट, ये सीरियल्स के एग्जांपल्स है। ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, फील्ड बीन पल्सेस के एग्जांपल्स है। सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, ये ऑयल सीड्स के एग्जांपल है। राइट, सीड्स स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स आफ्टर ब्रेकिंग। तो यहाँ पे ऐसे सीड्स की लिस्ट बना दी है जो तोड़ने के बाद 2 इक्वल हाफ्स हो गए उसके। उसमें मैंने लिखा है ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, फील्ड बीन, मोथ बीन, पिजन पीस एंड पीस। Seeds converted into many small pieces or powder form after breaking। उसमें है मिलेट, कैस्टर, बंटी, मस्टर्ड, मेज, व्हीट, जोवार, सीसम। Seeds which can be split into 2 equal halves are known as dicot seed। अभी जो सीड्स है वो उसके 2 इक्वल पार्ट्स में जैसे स्प्लिट हो जाते हैं उसको हम कहेंगे डाइकॉट सीड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डाइकॉट सीड्स। सीड
which cannot be split into two equal halves are known as monocot seeds. तो ऐसे जो सीड्स जिसका दो पार्ट में इक्वली हाफ नहीं होता है उसको कहेंगे मोनोकॉट सीड्स. राइट. वीट, पिजन, पीस, मस्टर्ड, रिपकुवर, बाजरा, मेज, राइस, तो ये सबको हमें क्लासीफाई करना है किसमें? मोनोकॉट सीड में और डाइकॉट सीड में. मोनोकॉट सीड दैट मीन्स सीड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो उनको कहेंगे मोनोकॉट सीड्स. डाइकॉट सीड्स दैट मीन्स सीड्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स. लेट्स क्लासीफाई. हियर वीट है, वीट को हमने कहाँ पे रखा? मोनोकॉट सीड में. नेक्स्ट है मस्टर्ड, ये मस्टर्ड है उस वो भी क्या है? मोनोकॉट सीड है. रिपकुवर्ड, रिपकुवर्ड भी मोनोकॉट सीड है. मेज, मेज भी मोनोकॉट सीड है. नेक्स्ट है मिलेट और राइस, ये सब किस में मैंने क्लासीफाई किया है? मोनोकॉट सीड में. नेक्स्ट है डाइकॉट सीड, उसमें लिखा है पिजन पीज, ये पिजन पीज है वो यहाँ पे लिखा है. और नेक्स्ट है मैंगो सीड, ये भी डाइकॉट सीड है. एक्टिविटी. टेक 2-3 मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स, तो हमें 2 या 3 मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स लेने हैं. सो दिस सीड्स इन अ टी कप, तो ऐसे जो सीड्स होते हैं उनको टी कप में सो करना है. प्लास्टिक बैग और ओपन स्पेस अराउंड योर हाउस और स्कूल, तो हमारे स्कूल या घर के आसपास में जो प्लास्टिक बैग होती है ओपन स्पेस होता है उसमें. सी दैट दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, हमें देखना है कि वो सन को एक्सपोज करे. वाटर द प्लांट्स टाइमली, हमें टाइम पर उनको वाटर देना है. ऑब्जर्व देम डेली, डेली उनको ऑब्जर्व करना है. राइट. राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट, तो ऐसे कुछ सीड्स है उनके ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि ऐसे कौन से सीड्स है उनके हमें नाम देने हैं जो सबसे पहले स्प्राउट हुए. वीट एंड ग्रीन ग्राम, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीड्स हमें लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करना है. लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. तो मैंने लिखा है यहाँ पे वीट एंड ग्रीन ग्राम. विच सीड्स हैव ग्रोन बाय द 5th डे, तो 5th डे पे कौन से सीड्स ग्रोन हुए? ग्रीन ग्राम, वीट एंड फील्ड बीन. Which seeds has grown the tallest? आंसर में मैंने लिखा है ग्रीन ग्राम. Which seeds were the first to sprouted bear to house? Wheat and green gram. Let's move on page number 26. Draw the pictures and filling in color them. Draw the picture of germinating seeds. तो आप ऐसे जो सीड्स की जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसको स्टेप वाइज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और कलर फिलअप कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस, ये जो सीड्स की जर्मिनेटिंग की जो प्रोसेस है वो हमें स्टेप वाइज दिखाई गई है. थिंक एंड से, व्हाट इफ अ मैंगो फ्रूट डेवलप ऑन अ क्लाइंबर ऑफ अ गुड़, अगर मैंगो फ्रूट है वो क्लाइंबर, गुड़ का जो क्लाइंबर है वहाँ पे अगर डेवलप होती तो. इफ मैंगो स्टार्ट ग्रोइंग ऑन क्लाइंबर ऑफ वाटर गुड़, पीपल विल नॉट प्लांट मैंगो ट्रीज, इंस्टेड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग वाटर गुड़ क्लाइंबर. तो अगर मैंगो जो वाटर गुड़ का जो क्लाइंबर है वहाँ पे स्टार्ट कर देती है ग्रोइंग करना, तो पीपल क्या करते? कभी मैंगो का जो ट्रीज है मैंगो प्लांट का भी नहीं करते. उसके अलावा वो क्या करते? दे विल स्टार्ट ग्रोइंग वाटर गुड़ क्लाइंबर. There will be a lot of mangoes and we will not have to climb one mango tree to get mangoes. तो अगर यहाँ पे ही उग जाती जो वाटर गुड़ का क्लाइंबर है तो हमें मैंगो ट्री पे चढ़ना ही नहीं पड़ता. Also mango will become cheap and water guar will become costlier. तो मैंगो का जो प्लांट है वो उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा. तो क्या होगा कि जो मैंगो है वो सस्ता बन जाएगा और जो वाटर गुड़ है वो कॉस्टली बन जाएगा. दैट मीन्स महंगा.
Instead of mango orchards, we will have water-covered garden. Next, if there were no seeds in the world, there would be no plant. तो जो सीड्स होते हैं, सीड्स से ही क्या होता है, प्लांट्स ग्रो अप होते हैं. सीड्स ही नहीं रहेंगे तो प्लांट्स कहाँ से ग्रो अप हो जाएंगे. Without plant, we will find it difficult to sustain our lives. Human need oxygen to survive, and hence we will also become extinct. Let's move on page number 27. What will you do to maintain the garden of your school? स्कूल का जो गार्डन होता है उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे? I will water the flowering plants. तो हम क्या करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको पानी देंगे. एंड द अदर स्मॉल प्लांट्स ऑफ द गार्डन, तो दूसरे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको भी हम वाटरिंग करेंगे. I will remove the weeds growing near the flowering plants. तो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसके चारों जो छोटा छोटा जो ग्रास टाइप का उगाता है उसको वीड्स कहते हैं. तो वो क्या करता है, जो वीड्स होता है, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है. उससे क्या होता है, जो मेन प्लांट होता है वो कमज़ोर होता है. इसीलिए ये जो प्लांट्स होता है मेन प्लांट, उसके चारों ओर जो वीड्स ग्रो अप होता है उसको रिमूव करना चाहिए. आई विल कीप चेक दैट नोबडी प्लक्स फ्लावर. तो हम रेगुलरली चेक करेंगे कि कोई फ्लावर को प्लक ना करे. I will grow henna on both sides of main path leading to the main gate of the school and the classroom. तो जहाँ पे मेन गेट होता है स्कूल का या क्लासरूम होता है उसके दोनों साइड पे जो मेन पथ होता है ना चलने का, उसके दोनों साइड पे हम घीना ग्रो अप करेंगे. After the school is over, I will go to the garden with my friends and there I will explain to the kids damaging the plants that the garden is explained and show the pride of the school and they should not destroy them. तो जैसे ही जब भी हम गार्डन में जाते हैं तो छोटे बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फ्लावर को प्लक नहीं करना है. एवरी ईयर आई विल ग्रो न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मेंटेन द ओवर ग्रोइंग हीना. तो हम क्या करेंगे, हर साल नए नए फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो अप करेंगे और जो दोनों साइड पथ है उसके चारों जो हम हीना ग्रो अप करते हैं उसको रेगुलरली कट करेंगे. अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखो आप. What will you do to maintain the garden of your school? I will water the plants. I will remove the weeds growing near plants. Every year I will grow new plants. I will maintain all the plants. Next activity दी गई है, fetch a bucket filled with water. Observe water. Then all the students wash their hands in bucket. Observe the water again. तो हमें क्या करना है, एक बकेट को वाटर से फिलअप करना है, वाटर को ऑब्जर्व करना है. तो जैसे ही हम क्लीन वाटर उसमें फिलअप करते हैं तो वाटर कैसा होता है, क्लीन होता है. उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बकेट में हैंड वॉश करते हैं उसके बाद वाटर को ऑब्जर्व करना है. Discuss the following question. How was the water in the bucket earlier? Earlier the water in the bucket was clean. तो पहले कैसा था, पानी क्लीन था. What change was seen in the water after washing hand? The water got dirty after washing hand. तो आप देख सकते हो कि जो क्लीन वाटर से भरी हुई बकेट थी पहले क्लीन थी, अब जैसे ही सारे स्टूडेंट्स उसमें हैंड वॉश करेंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा. द वाटर Why did the water get polluted? जो वाटर कैसे पॉल्यूट हुआ, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास प्ले गेम्स एंड वॉश देयर हैंड्स आफ्टर इट. तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्लास में गेम्स खेली और उसके बाद उन्होंने अपने हैंड वॉश किए. सो क्लीन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड. Why should we wash our hands before taking meal? To remove dirt and microbes from our hands, we must wash our hands. मेकिंग डस्टबिन यूजिंग वेस्ट मटीरियल. यूज मी टू थ्रो वेस्ट. तो यहाँ पे क्या किया है, डस्टबिन बनाई है. किस लिए होती है डस्टबिन, टू थ्रो वेस्ट मटीरियल्स. थिंक एंड से. नील लीव्स द टैप ऑन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. तो नील क्या करता है, टैप को खुला छोड़ देता है. इफ नील लीव्स द टैप ओपन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर
वाटर गेट वेस्टेड एंड अदर स्टूडेंट्स डू नॉट गेट वाटर। तो जैसे ही जो पीने का पानी होता है उसका नल खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वाटर वेस्ट हो जाता है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पानी पीने को नहीं मिल सकता है। Therefore, first of all, I will close the tap and explain Neil not to do the same mistake again. तो नील को ऐसे समझाना है कि जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो बहुत ही प्रेशियस होता है, उसको वेस्ट नहीं करना है। रीचा हार्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रीचा क्या करती है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हार्म करती है। इफ रीचा हार्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स शी डैमेज द ब्यूटी ऑफ गार्डन। When harmed, the flowering plant loses its power to develop. I will explain Risha that flowering plants are best friends and the beauty of the garden. To protect them is our duty. Rubbish is lying in the classroom. The classroom looks dirty due to the rubbish. तो क्लास में कचरा होने से क्लासरूम कैसा होता है, गंदा दिखता है। I will pick up the rubbish and throw it in the dustbin. I will explain to my classmate that if the rubbish is lying near us or in our classroom, we must throw it in the dustbin immediately. I will bring a dustbin in the class with use me written on it. There are ditches contain squalor around the house. I will fill the ditches by pouring earth in them. The squalor of the ditches gives rise to mosquito which spread disease. Smith does not go to school. I will seek the reason as to why Smith is not going to school. I will meet Smith and his parents if I can solve the problem. Next, परफॉर्म एक्टिविटी। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। तो ये जो एक्टिविटी है वो आप स्टूडेंट्स के लिए है, तो जब भी आप क्लास में आओगे देन विल परफॉर्म। थिंक एंड से व्हाट ऑब्जर्वेशन हैव यू मेड इन चैप्टर फर्स्ट एंड 3। तो आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पेज नंबर 2 है, उसमें क्या है कि जो हमारी बेसिक ड्यूटीज है क्लीनलीनेस की और हेल्थ की वो दिखाई गई है। फिर जो फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 6 है उसमें हमें स्ट्रीट को क्लीन करना, वेस्ट को डिस्पोज करना वो सिखाया गया है। वैसे ही पेज नंबर 2 है उसका जो ऑब्जर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं, राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट जो थर्ड लेसन था उसमें क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। Which classifications have you made in chapter 1 to 3? तो आपने देखा होगा कि जो लेसन 3 है उसमें पेज नंबर 23 पे क्लासिफिकेशन क्या था, सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स का था। और पेज नंबर जो 24 है उसमें मोनोकॉट सीड्स और डाइकॉट सीड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया था।